dear students, welcome to Alan Digital. What do you see right behind me here? Yes, plants. So many huge, big plants. और ये पिक्चर देख करके आपको लग रहा होगा कि जरूर ये पिक्चर किसी फॉरेस्ट से ली गई है. It is giving a forest kind of feel, as if I'm standing right amidst the forest, right? और ये जो टर्म है फॉरेस्ट की आपने जरूर अपने ग्रैंड पेरेंट्स इसके बारे में सुना होगा while you are hearing the bedtime stories, while they're telling you the bedtime stories. अब अगर मैं आपसे कहूँ, आप खुद को इमेजिन करिए as if you are standing right amidst the forest and start looking around yourself in your imagination, of course, maybe towards your left or towards your right. What will you be able to see? The answer is very obvious. Plants everywhere. और क्यों ना जब हम बात कर रहे हैं प्लांट्स की, why not let us get to know about them more? Why not make them our friends? The section is all about getting to know about plants, a new chapter, a new beginning. In this section, we'll come to know about plants more and more. So, if I ask you to go towards a plant, near to a plant, and उससे जाकर के बातें शुरू करिए, आप उससे पूछिए आप कैसे हैं, how are you, या will you become my friend, or any question, will you get any reply, will you get any response? No, the plant is not going to respond. क्यों? आप किसी ह्यूमन बीइंग से पूछिए, वहां तो आपको आंसर मिलेगा. या फिर आप किसी आपके कोई पेट डॉग है, पेट कैट है, उसको आप टैप करिए या कुछ भी, वो आपको मुड़ करके देखेगा. ही इज गोइंग टू गिव यू अ लुक, राइट? तो फिर प्लांट्स क्यों नहीं? प्लांट्स भी तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, राइट? हैं या नहीं? अ क्वेश्चन हियर अराइजेस, are plants living or not? So, first of all, before moving ahead, before getting to know about plants more, first of all, let's get clear about this question, whether plants are living or not. We all are living organisms. You, me, all of us are living organisms. और सबसे पहली चीज, we took a birth, right? And then you are growing, you are developing, and then further you will become an adult, and after some time human beings, they die. So all the living organisms, not just human beings, अगर आपकी पेट डॉग की बात की जाए, आपके पेट कैट की बात की जाए, किसी पेट की बात की जाए, तो they also took birth, they are going to complete their lifespan, and then they are going to die, right? So all the living organisms, they take birth and then they die, and they have a fixed lifespan. If plants are also living, then they should be also following the same, they should also have this characteristic, right? बिल्कुल. अगर हम प्लांट्स को ऑब्जर्व करें, एक छोटा सा सीड जब कोई गार्डनर या कोई भी पर्सन मॉइस्ट सॉइल में प्लेस करता है, उसको फेवरेबल कंडीशंस मिले, it grows and develops into a big huge plant. That means वो जो बर्थ और डेथ की बात हो रही है, वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल है. It grows, it develops. It is also having a fixed lifespan. And after that, what happens? Senescence, aging. And then the leaves start wilting. We see all of these signs which indicate the senescence period, aging. And then the plant dies. So yes, this confirms that plants are also living organisms. They also grow and die. They also have a definite lifespan. और देखते हैं, further if we compare them with us, अगर human beings की बात की जाए या किसी भी animal की बात की जाए, dog, cat, etc., anyone, तो इनकी जो body है, वो small compartment से बनी हुई है. ये बाहर से जो एक सिंगल पीस बॉडी नजर आती है, एक्चुअल में ये अंदर से सिंगल पीस नहीं है. The body is made up of so many small compartments known as cells, which is the basic unit of life. All the living organisms are composed of cells. अगर plants भी living है, तो उनकी body भी cells की बनी होनी चाहिए, right? होती है, बिल्कुल. प्लांट्स की बॉडी भी सेल्स से ही बनी हुई होती है. When the plant body is composed of cells. Hence, another point which indicates, another characteristic which indicates that yes, plants are also living organisms, that they are made up of cells. Further हम देखते हैं, we eat food.
सबसे पहले मॉर्निंग में उठते हैं, वी नीड ब्रेकफास्ट, वो प्लेट में खाना लेकर के बैठते हैं खाने। क्या प्लांट्स को आपने कभी देखा है प्लेट लेकर के बैठे हैं, अ प्लेट फुल ऑफ फूड? नो। सो प्लांट्स डू नॉट ईट फूड। हम पानी पीते हैं ग्लास में, क्या किसी प्लांट के आगे ग्लास रखा हुआ देखा है कभी कि वो ग्लास में पानी पी रहा हो? नहीं। वी नीड फूड एंड वाटर टू सर्वाइव, वी नीड एयर इन ऑर्डर टू ब्रीथ। डू प्लांट्स ऑल्सो रिक्वायर फूड, वाटर एंड एयर? यस, दे ऑल्सो रिक्वायर। हाँ, हमारी तरह प्लेट लेकर के नहीं बैठते खाने, क्योंकि वो अपना खाना खुद ही मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, but they also require nutrients in order to obtain energy from it to do various activities. उन्हें भी पानी चाहिए होता है। हाँ, हमारी तरह ग्लास लेकर के पानी नहीं पीते हैं, क्योंकि उनकी रूट्स पानी अब्सॉर्ब कर सकती है खुद ही, इसीलिए they also take up oxygen from the air, and thus this indicates, this characteristic is showing us that yes, plants are also living organisms. So what we can say, they also need energy, nutrients, air as well as water. और साथ ही में just like a cat is able to give birth to a young kitten, a dog, हम उनके साथ हमेशा छोटे छोटे से puppies भी देखते ही हैं। Human beings also give birth. उसी तरह से plants also, they reproduce, they produce young ones. Reproduction as a process by which an organism, living organism, is able to produce more of its own kind. This indicates that the organism is living, and plants also show this property. Hence, we can conclude that yes, all the plants are alive. Plants are also living organisms. But अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठ रहा है, अगर प्लांट्स अलाइव हैं, लिविंग हैं, तो जब हम उनसे बात करते हैं तो हमें रिप्लाई क्यों नहीं देते? When we tap them, वो हमको मुड़कर क्यों नहीं देखते? वो कुछ रिस्पॉन्स क्यों नहीं शो करते? वो क्यों नहीं पूछते कि क्या है, क्या चाहिए? What do you want? Do you need something? No, they never reply, they never respond like that. तो फिर प्लांट्स लिविंग कैसे हुए? Plants are living, no doubt, and they also give response, no doubt. हाँ, उनके रिस्पॉन्स करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। The manner in which they respond is different. Let's see how. यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमने लिया है मिमोसा प्यूडिका प्लांट का। जैसे ही आप किसी टच मी नॉट प्लांट की लीव्स को टच करेंगे, लीव्स कर्ल हो जाएंगी। What is this? This is a response. जब टच किया गया, any chemical, any event which is going to provoke response, that is termed as, which is going to provoke a reaction, that is termed as stimulus. तो जैसे ही यहाँ पे stimulus मिला प्लांट पार्ट को, यहाँ पर response show हुआ, it gave reaction. This is what? This is response only. Hence plants also react to what's around them. वो भी रिस्पॉन्स शो करते हैं। Hence definitely they are living organisms. And my dear students, life is impossible without plant. इनके बिना लाइफ एग्जिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं है। और प्लांट्स, आप कहीं भी जाएंगे, आप किसी भी सिटी में जाइए, किसी भी कंट्री में, किसी भी प्लेस पर जाइए, आपको प्लांट्स हर जगह नजर आएंगे। They are ubiquitous, they are found everywhere around us. Even they may also show a huge, large diversity. They may be even small, they might be big, they might be found on land, they might be found in water also. चाहे पानी की बात करें तो एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास हाइड्रेला, लोटस एंड वाटर लिली। लैंड की बात करें तो लैंड पर भी प्लांट्स मिल जाएंगे। Many plants are found in land also. For example, jasmine, ये जो beautiful white colored flowers नजर आ रहे हैं, ये jasmine plant के ही हैं। नीम, big huge plant, ये भी land पर देखने को मिलता है। So a huge diversity is observed in case of plants also. वहीं अगर मैं shape and size की बात करूं, इनके nature की बात करूं, for example nature of stem, तरह तरह से diversity देखने को मिलती है। चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी क्यों ना की जाए। सो इट इज एक्टिव बायोलॉजी टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ ब्यूटीफुल एक्टिविटी ओवर हियर। यहाँ पर
हम ऑब्जर्व करेंगे किस तरह से शेप, साइज, नेचर ऑफ स्टेम के रूप में हमको डाइवर्सिटी प्लांट्स में देखने को मिलती है। हम 3 प्लांट्स लेने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के। सबसे पहले हम अपने घरों में छोटे छोटे से पॉटेड प्लांट रखे हुए होते हैं, तो हम कोई सा भी छोटा सा पॉटेड प्लांट सेलेक्ट करेंगे, उसको हम लेबल कर देंगे एज नंबर 1। यहाँ पर मैंने एक टोमेटो प्लांट लिया है, छोटा सा पॉटेड प्लांट है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू लुक क्लोजली एट द टोमेटो प्लांट। सबसे पहले अगर मैं इसके स्टेम, नेचर ऑफ स्टेम की बात करूं तो इसका नेचर कैसा है, इसको देखें तो यहाँ पे स्टेम जो है ये ग्रीन कलर का है, और इसको अगर मैं टच करती हूँ तो आई एम गोइंग टू फाइंड आउट दैट इट्स वेरी टेंडर, वेरी डेलिकेट। और साइज की अगर बात करूँ तो साइज कैसी है, वेरी स्मॉल, इवन स्मॉलर देन यू ऑल। तो यहाँ पर मैंने ऑब्जर्व किया ग्रीन टेंडर स्टेम और वेरी स्मॉल साइज। चलिए एक और प्लांट, मैं थोड़ा बाहर आगे गई, थोड़ी नॉर्मल साइज का, इंटरमीडिएट साइज का मैंने प्लांट सिलेक्ट किया। मैंने यहाँ पर लेमन प्लांट सिलेक्ट किया है, आप कोई सा भी प्लांट सिलेक्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल साइज, इट इज अबाउट ऑफ योर साइज, इंटरमीडिएट साइज इट इज हैविंग। अब अगर मैं इसके स्टेम को ऑब्जर्व करूं तो नेचर ऑफ स्टेम यहाँ पर कैसा होगा, इट इज गोइंग टू बी हार्ड, जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं हार्ड स्टेम यहाँ पर प्रेजेंट है, हार्ड स्टेम, इंटरमीडिएट साइज। फर्दर एक और प्लांट मैं यहाँ पे ऑब्जर्व कर रही हूँ, मैंने यहाँ पर किसी आसपास गार्डन में आप जा सकते हैं, या बाहर बड़े बड़े जो प्लांट्स दिखते हैं हमें, ह्यूज टॉल प्लांट्स दिखते हैं, तो वहाँ आप किसी गार्डन में जाइए या बाहर कहीं भी, आप किसी ह्यूज प्लांट को लीजिए, उसको आप एज अ नंबर 3 लेबल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये मैंगो प्लांट सिलेक्ट किया है, इट इज वेरी टॉल, मच टॉलर देन यू। सबसे पहले तो हाइट, वेरी टॉल साइज। और अब इसके नेचर ऑफ स्टेम को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप देख पाएंगे बहुत ही हार्ड, बहुत ही थिक है, बेहद थिक स्टेम है, और साथ ही में काफी सारी ब्रांचिंग भी नजर आ रही है, विच इज अराइजिंग फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द स्टेम। अच्छी खासी ब्रांचिंग है अराइजिंग फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द स्टेम। वहीं अगर इससे पहले जो हमने लेमन देखा था वहां पर भी ब्रांचेस प्रेजेंट थी, बट द ब्रांचेस वर अराइजिंग फ्रॉम द बेस। हमने ऑब्जर्वेशंस ले लिए हैं, चलिए फटाफट से ऑब्जर्वेशंस को नोट डाउन कर लेते हैं एक जगह पर। इन दिस टेबल वी आर गोइंग टू फिल आउट दिस टेबल विद ऑल द ऑब्जर्वेशंस दैट वी हैव टेकन। फर्स्ट ऑफ ऑल टोमेटो प्लांट की अगर मैं बात करूं तो हाइट वेरी स्मॉल, नेचर ऑफ स्टेम इट इज ग्रीन एंड टेंडर, branches not there if found, very few. So इस प्लांट को मैं किस में डालूंगी, सबसे पहली फर्स्ट कैटेगरी में, जो कि है herbs. A tomato is an example of the very first category of plant, that is herb. Second, lemon, height intermediate, nature of stem hard, branches yes present at the base of the stem. इस तरह के plants अगर आपको देखने को मिलते हैं तो they fall in the second category of plant, that is shrubs. A lemon is one such example. Third, mango हमने observe किया था, much taller than you all, height is very tall. Nature of stem की बात करूं, it is thick as well as hard and branches present yes, from where, higher up on the stem. इस तरह के plants having such characteristics if are found, then they are put in the third category, that is trees. Mango is one such example of a tree. बहुत सारी trees हमारे पास आसपास हम देखते हैं, mango, guava, etc. तो इस तरह से हम क्या conclude कर सकते हैं इस activity से, plants can be mainly divided into 3 categories based on size and the nature of stem. Number 1, herbs. Number 2, shrubs. And number 3, that is trees. That's all. Thank you so much.